برائے خوشنود یہ ظہور مولا امام حسین علیہ السلام بواضح بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الکریم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد منکر فضائلہم وغاصب حقوق مجمعین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ازل سے بد تک تم دونوں کا محافظ نعرہ حیدری یا علی نجف سے کربلا تک آواز جائے حیدری یا علی حیدری یا علی حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد برائے ظہور المنتقی میں ہونے امام حسین علیہ السلام بواضح بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد میری مولا کی عزیزدار ماں و بہنوں، آج 3 شعبان کی شب ہے اور کل کا دن 3 شعبان سے منسوب ہے۔ کل کا دن میرے مولا امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ آج میرے مولا شہنشاہ کربلا مولا امام حسین کی آمد کا دن ہے۔ مولا امام حسین کی آمد کا دن ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد آج کے دن باغ رسالت میں وہ پھول مہکا تھا جس کی پاکیزہ خوشبو سے آج تک اور قیامت تک یہ دین مہکتا رہے گا۔ آج تک اور قیامت تک یہ دین مہکتا رہے گا۔ کیا شان ہے، کیا عظمت ہے میرے مولا امام حسین کی، کیا فضیلت ہے میرے مولا حسین کی۔ آج اس کی ولادت ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ الحسین منی و انا من الحسین، اور رسول اللہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں خود خدا کہتا ہے کہ میرا حبیب اس وقت تک کچھ نہیں کہتا جب تک میں نہ کہتا۔ اس کا مطلب یہ الحسین منی و انا من الحسین بھی صرف رسول اللہ نے نہیں کہا، رسول کی زبان سے خود خدا نے کہا الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، زمانہ سمجھ ہی نہیں سکا۔ زمانے نے حسین منی و انا من الحسین کو ایک جملے کی اس فارم میں لیا، سمجھا کہ ایک جملہ ہے، ایک فرمان ہے۔ زمانے نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ صرف رسول نہیں کہہ رہے، خود خدا کہہ رہے رسول کی زبان سے کہ میں حسین سے ہوں۔ کیا فضیلت، کیا عظمت، کیا مرتبہ و مقام ہے میرے مولا حسین کا کہ خود خدا کہہ رہے کہ میں حسین سے ہوں، کہ خود خدا کی ذات کہہ رہی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ رسول تب تک کچھ نہیں کہتے نا جب تک خدا نہ کہہ دے۔ قرآن اس چیز کی گارنٹی دے رہا ہے کہ رسول اس وقت تک کچھ نہیں کہتے جب تک خدا نہ کہہ دے۔ تو رسول بھی کہہ رہی ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، اور رسول ہی کی زبان سے وہ بھی کہہ رہا ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ حسین وہ جوان آلے جنت کے سردار ہیں، حسین وہ جو جوان آلے جنت کے سردار ہیں، امت کے غم گسار ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، امت کے غم گسار ہیں۔ مولا علی کے نور نظر سیدہ کے آنگن کی بہار ہے، مولا علی کے نور نظر سیدہ کے آنگن کی بہار ہیں، جو فجر الہی کا حل عطا ہے، جو فجر الہی کا حل عطا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل جو فرد قصہ ہیں، جو فرد قصہ ہیں، جو سید و شہداء ہیں، کہ شہیدوں میں بھی جن کو یہ مرتبہ ملا کہ وہ سید و شہداء ہیں، شہیدوں میں بھی جن کو یہ مرتبہ حاصل ہوا، یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ وہ شہیدوں میں بھی 72 شہداء میں بھی سید و شہداء صرف ایک ہی، اور اس ایک کو حسین کہتے ہیں۔ وہاں وہ ایک ہے، یہاں یہ ایک ہے، اس کا بھی کوئی شریک نہیں، اس کا بھی کوئی
कोई शरीक वाह जी, नहीं। नाराए वो भी एक, ये भी एक। हैदरी, हैदरी, उलमाए ज़ाकरीन की इज़्ज़त और सलामती के लिए बुलंद से बुलंद तर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 12 इमामों में 4 मोहम्मद और 4 अली। बेशक 12 इमामों में 4 मोहम्मद और 4 अली हैं। जो 12 में भी यकता हो उसे हुसैन कहते हैं। जो 12 में भी यकता हो उसे हुसैन कहते हैं। और क्या फजीलत, क्या मर्तबा मकाम होगा मेरे मौला हुसैन का कि जिसकी फजीलत, जिनके फजाइल खुद अहले बैत अतहार बयान करते हैं, कि खुद अहले बैत मेरे मौला हुसैन के फजाइल बयान करते हैं। क्या फजीलत है, क्या शान है, क्या मर्तबा है। मैं क्या बताऊं कि क्या हुसैन है। कनीज़े हुसैन क्या बताए कि क्या हुसैन है। मौला हुसैन होते ही वो हैं जो समझ आ नहीं सकते, और जो समझ आ जाए वो हुसैन नहीं होता। हुसैन होने की शर्त है कि हुसैन समझ में नहीं आ सकते। बेशक ज़माना कहता है हमें हुसैन समझ में नहीं आया। मौला हुसैन का मौजज़ा क्या है, मौला हुसैन के कमालात क्या है, अरे वो तो समझ में आ ही नहीं सकते। ज़माना कहता है हमें ये समझ में क्यों नहीं आते, अरे वो तो है ही ऐसी ज़ात जो समझ में आ ही नहीं सकती। ये तो सिर्फ उनके वाक़ियात है जिनको एक्सप्लेन करके हम उनके फ़ज़ाइल कहते हैं। ये मौला हुसैन के फ़ज़ाइल नहीं है कि मौला ने ज़ुल्फ़िकार निकाल ली, मौला करबला में चले गए, मौला ने जंग कर ली। ये सब कुछ सिर्फ मौला के इख्तियारात हैं। मौला के फ़ज़ाइल तो आज तक बयान हो ही नहीं सके। हुसैन कौन है ये सिर्फ वो जानता है। हुसैन के फ़ज़ाइल बयान करने के लिए कम से कम अल्लाह होना ज़रूरी है। हुसैन के फ़ज़ाइल बयान करने के लिए कम से कम अल्लाह होना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ने बयान किए, अल्लाह ने बयान किए और ज़माने को बताया। तभी तो कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। नाराए हैदरी, हैदरी, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत पर बुलंद से बुलंद तर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज मेरे आका मौला मेरे तीसरे इमाम मौला हुसैन इब्न अली की आमद का दिन है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी बंदगी के लिए लातदाद मलाइक तख्लीक फरमाए हैं, मगर इबादत सिर्फ इंसान के लिए पसंद की, मगर इबादत सिर्फ इंसान के लिए पसंद की कि इबादत सिर्फ इंसान करेंगे, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूकात है। जियो जियो जियो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर इस बारे में बात करें तो बात बहुत लंबी चली जाएगी, क्योंकि ये खुद एक बाकायदा एक मौजू है, ये खुद एक मौजू है। इस पर फिर इंशाल्लाह कभी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि उन फरिश्तों के मुख्तलिफ इकसाम हैं, उनके ग्रोह हैं, और हर ग्रोह का एक नाम है, हर ग्रोह का एक नाम है। इन फरिश्तों में जो फरिश्ते हर वक्त सजदे में हैं, उनके ग्रोह उस ग्रोह को मेहा कहते हैं, उस ग्रोह को मेहा कहती हैं, जो हर वक्त सजदे की हालत में रहती हैं। और जो ग्रोह रुकू में रहता है वो मैं महा कहलाता है, और जो ग्रोह हर वक्त रुकू की हालत में रहते हैं वो मैं महा कहलाता है। जो तहलीक से लेकर हशर तक किया में है उनको बलाह कहते हैं, उनको बलाह कहते हैं। सवाल पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और फरिश्तों का वो ग्रोह जो हमेशा महवे परवास रहता है, और फरिश्तों का वो ग्रोह जो हर वक्त महवे परवास रहता है, यानी कि परवास में रहता है, उड़ता रहता है। क्या फजीलत, क्या मर्तबा मुकाम दिए हैं उन्होंने अपने नौकरों को। ये उनके ही नौकर है ना, ये वही है ना जो कभी दर्जी बनकर तो कभी इख्तियार कर उनके घर पे जाते हैं। क्या फजीलत, क्या मर्तबा मुकाम है कि जिनके नौकर बनने के लिए भी कम से कम फरिश्ता होना जरूरी है, जिनके नौकर बनने के लिए भी कम से कम फरिश्ता बनना जरूरी है। जिब्राइल ने मन के बताया कि उन हुसैन का नौकर बनने के लिए भी कम से कम फरिश्ता बनना जरूरी है। हमारी क्या हैसियत, क्या औकात के हम मौला के नौकर बन सके। मौला हुसैन की ज़ात पे बावाज़े बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजिल फरजम। बिस्मिल्लाह। और जो फरिश्ते ज़मीन और आसमान की रखवाली करते हैं उनको बखर कहते हैं, और वो ग्रोह जो जहाँ की हिफाजत करते हैं और आलमीन की खिदमत करते हैं उनको रौफ कहते हैं,
ان کو रऊफ कहते हैं। इसी रऊफ ग्रोह का एक फरिश्ता जिसका नाम फुतरुस था। इसके सोने के पर और याकूत की आंखें थीं। सोने के पर और याकूत की आंखें थीं। ये बड़ा अकड़ कर चलता था और अपने हुस्न पर बड़ा मान किया करता था। यानी उसे गुरूर था कि मैं फरिश्तों में सबसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत हूँ। किसी को कोई कमाल मिले तो उस पर वो गुरूर तो करता है, उस पे वो गुरूर तो करता है, लेकिन इंसान को जो है मान होना चाहिए। लेकिन ये मान इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो गुरूर तक पहुंच जाए, क्योंकि गुरूर अल्लाह पाक की जात को पसंद नहीं है। सलवात पढ़ें। इसे जिब्राइल और मिकाईल, इसराफील और अज़ाज़ील समझाते थे कि ये बात खुदा को पसंद नहीं है। इसे बाकी फरिश्ते जो थे वो समझाया करते थे कि ये बात खुदा को पसंद नहीं है। ऐसी किसी मुसीबत में ना पड़ जाना, ऐसे ही किसी मुसीबत में ना पड़ जाना। मगर फुतरुस को किसी भी तरह समझ ना आया। आखिरकार एक दिन उसने तकब्बुर का नारा बुलंद कर दिया और कहने लगा, है कोई मुझ जैसा। उसने एक दिन तकब्बुर का नारा बुलंद किया और कहने लगा, है कोई मुझ जैसा। तवज्जो रखिएगा, उसने कहा, है कोई मुझ जैसा। सवाल पढ़ें। बस ये कहना था कि उसके पर जलने लगे, अल्लाह के गजब का शिकार हो गया। उसके पर जलने लगे और वो अल्लाह के गजब का शिकार हो गया। उसको जमीन पर फेंक दिया गया। हजारों सदियां रोता रहा, माफिया मांगता रहा। इस दौरान बहुत सारे अंबिया आए, लेकिन फुतरुस की सुनी ना सकी, यानी उसको माफी ना मिल सकी। हजारों साल रोता रहा, पछताता रहा कि ये मैंने क्या गलती कर दी। काश मैंने ये लफ्ज ना कहा होता तो शायद मुझे इतनी बड़ी सजा ना मिलती। काश मैंने ये लफ्ज ना कहा होता तो इसकी मुझे इतनी बड़ी सजा ना मिलती। आखिरकार रिसालत माप का जमाना आ गया। एक दिन फितरत ने देखा कि आसमानों से मलाइका उतर रही हैं। सुभान अल्लाह। कि आसमान से मलाइका उतर रही हैं और बड़े खुश हैं। मलाइका उतर रही हैं, बहुत खुश हैं। वो बहुत हैरान था कि आज क्या खास बात होगी, बिस्मिल्लाह, कि आज के दिन ऐसी क्या खास बात होगी कि मलाइका भी झूम रही हैं, मलाइका भी खुशी हैं, इतने खुश हैं कि गीत गा रहे हैं। क्या सा दिन है आज। वो सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन सा खुशी का दिन है कि आज मलाइका इतने खुश हैं कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। उसको पता ही नहीं था कि आज 3 शबान का दिन है। सवाल पढ़ें। अचानक से उसकी नजर हजरत जिब्राइल पर पड़ी तो उसने सदा दी कि ऐ जिब्राइल मेरी बात सुनो। उसने सदा दी, ऐ जिब्राइल मेरी बात सुनो। जब जिब्राइल ने देखा कि फुतरुस है, वो पास आया और कहा, क्या बात है। फितरस ने कहा कि आज क्या हुआ है जो तमाम फरिश्ते खुशी से जमीन पर उतर रही हैं। आज क्या बात है जो खुशी से तमाम फरिश्ते जमीन पर उतर रहे हैं। तो जिब्राइल ने कहा कि आज अल्लाह के महबूब हजरत मौला मोहम्मद मुस्तफा की बेटी का घर महबूब खुदा के महबूब का नुज़ूल है। महबूब खुदा के महबूब का नुज़ूल। क्या शान है मेरे मौला हुसैन की, जो महबूब खुदा का महबूब हो से हुसैन। क्या फजीलत, क्या मर्तबा मकाम है। महबूब खुदा होना छोटी बात है, अल्लाह का महबूब, और जो अल्लाह के महबूब का महबूब हो, क्या शान होगी उस तो जिब्राइल ने फितरत से कहा कि आज मौला हुसैन दुनिया में तशरीफ ला रही हैं। बिस्मिल्लाह। तो आज मौला हुसैन दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। इस पर फुतरस ने कहा कि ऐ जिब्राइल मुझे भी ले चल, मैं रसूल खुदा और उनके प्यारे नवासे की ज़ियारत का मुश्ताक हूँ। मेरी प्यारी माँ बहनों, अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता जिब्राइल अल्लाह की इजाज़त के बगैर तो नहीं ले जा सकता था ना। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता है, नहीं ले जा सकता ना। तो जिब्राइल का फुतरस को ले जाना अल्लाह की रजा के बगैर तो ना था। बेशक अल्लाह की रजा के बगैर तो जिब्राइल फुतरस को नहीं लेकर गया ना है। फितरस को रिसालत माफ की बारगाह में पेश किया तो फितरस रसूल खुदा के कदमों में गिर के रोने लगा और रसूल खुदा से कहा। रसूल खुदा ने फरमाया, ए फितरस जाओ मेरे नवासे सखी मौला हुसैन के झूले से अपने पर को मस कर लो, तुम्हें बालों पर मिल जाएंगे। करबला मौला हुसैन बादशाह की अजमत पर बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और आज मैं एक और कंसेप्ट क्लियर करते चलूं। लोग कहते हैं कि फितरस को मौला हुसैन ने पढ़ दिया,
जबकि फितरस ने परों को मौला हुसैन के झूले से मस किया, जबकि फितरस ने अपने परों को मौला हुसैन के झूले से मस किया। अरे ये शिफा देना मेरे हुसैन मौला हुसैन का काम नहीं, ये काम तो मेरे मौला हुसैन का झूला भी कर लेता। सुभान अल्लाह, जियो जियो। काम तो मेरे मौला हुसैन का झूला भी कर लेता है। अरे हुसैन तो वो है कि जिसका लहू मिट्टी में मिले तो मिट्टी भी हाँ के शिफा मौला हुसैन की अजमत पर बुलंद से बुलंद तर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अभी फितरस ने झूले को बौसा दिया ही था कि चेहरा पहले से ज्यादा हसीन और खूबसूरत हो। चेहरा पहले से ज्यादा हसीन और खूबसूरत हो गया। तमाम मलाइक ये मंजर देखकर मौला हुसैन के नारे बुलंद कर रहे थे। फितरस ने फौरन ही अपने जिस्म को मौला सखी मौला हुसैन बादशाह के झूले से मस किया तो पहले से भी कहीं ज्यादा हसीन और खूबसूरत नजर आने लगा। तो फितरस ने फिर वही नारा बुलंद कर दिया कि है कोई मुझ जैसा। बड़ी तवज्जो रखिएगा, उसने फिर वही नारा बुलंद किया कि है कोई मुझ जैसा, है कोई मुझ जैसा। बड़ी तवज्जो रखिएगा। फरिश्ते बड़े हैरान थे कि पहले भी यही जुमला कहा, सजा मिल गई, अब इसको दोबारा से माफी मिली है, दोबारा से पर मिली है, फिर वही जुमला कह रहे हैं। फरिश्ते हैरान थे, परेशान थे कि आखिर माजरा क्या है, आखिर किस्सा क्या है, ये इसने वही जुमला क्यों दोबारा अदा किया। फरिश्ते हैरान थे, परेशान थे और मंजर देख रहे थे कि अब इसके परों को क्यों वापस नहीं लिया गया। वो देख रहे थे कि अब इसके परों को क्यों वापस नहीं लिया गया। सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिब्राइल ने आगे बढ़कर कहा कि फितरस क्या तुम्हें नसीहत नहीं मिली? फितरस क्या तुम्हें नसीहत नहीं मिली? हजारों बरस तुम अज़ाब इलाही का शिकार रहे हो और फिर वही गलती कर रहे हो तो फितरस ने मुस्कुरा कर कहा है जिब्राइल अब ये पर मुझे मेरे मौला सखी मौला हुसैन इब्न अली की अता किए हैं और मौला हुसैन की अता खुदा की रजा के बगैर नहीं होती। मौला हुसैन की अता खुदा की रजा के बगैर नहीं होती। सवाल पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुसैन उस जात को कहती है कि जिसका सदका खुदा वापस नहीं लेता। हुसैन उस जात को कहती है कि जिसका सदका खुदा एक बार दे दे तो वापस नहीं कहता। इसी बात की बिना पर फितरस ने कहा है कोई मुझ जैसा, मन में इसलिए है कोई मुझ जैसा। अब लेकिन उसके जुमले में फर्क था। पहले कह रहा था गुरूर से, अब कह रहा था मान से। पहले कह रहा था गुरूर से, अब कह रहा था मान से। है कोई मुझ जैसा जिसको हुसैन के झूले से शिफा मिली हो। वो मान से इसलिए कह रहा था क्योंकि अब उसका मान करना बनता था। क्योंकि अब उसका मान करना बनता था। वो ऐसी सखी ऐसी जात के झूले से मस हो गया। ये फजीलत, ये मर्तबा और मकाम, क्या शान है मेरे मौला हुसैन की। ये फजीलत भी कहाँ किसी को हासिल होती है कि कोई आम बंदा मौला हुसैन के झूले से अपने आप को मस्त करे। ये हर किसी को हासिल नहीं होती। इसी वजह से तो फितरस ने कहा है कोई मुझ जैसा, मन मिसली है कोई मुझ जैसा जिसको ये मकाम मिला हो कि वो मौला हुसैन से अपने परों, मौला हुसैन के झूले से अपने परों को मस्त कर सके। सवाल पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो मेरी मौला की अज़दार माँ बहन, जब भी दुआ मांगा करो मौला सखी बादशाह हुसैन के वसीले से मांगो। अल्लाह ताला मौला हुसैन के वसीले से मांगी हुई दुआ को कभी रद्द नहीं करता। मौला हुसैन के वसीले से मांगी हुई दुआ को रद्द नहीं करता। सवाल पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्योंकि ये कायनात की वो हस्तियां हैं जिन्होंने अल्लाह की रज़ाएं खरीदी। क्योंकि ये कायनात की वो हस्तियां हैं जिन्होंने अल्लाह की रज़ाएं खरीदी है, यानी जिनकी बात पर खुदा राजी हो उन्हें अहले बैत कहते हैं। जिनके लबों से कोई भी बात ऐसी नहीं निकली कि जिस पे खुदा राजी ना हो। जिनके लबों से ऐसी कोई बात नहीं निकली जिस पे खुदा राजी ना हो। सवाल पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। सदके ये वो जाते हैं जिन्होंने अपने नफ्सों को बेचकर मर्जियाते खुदा खरीद ली, यानी अल्लाह की रज़ाएं खरीद ली। यानी अपने नफ्स के साथ ऐसा जिहाद किया, ऐसा इश्क था खुदा से उन्हें, अहले बैत को ऐसा इश्क था खुदा से कि उन्होंने अपने
अपने नफ्स को छोड़ दिया और अल्लाह की रज़ाएं खरीद ली। जो कमालात, जो इख्तियारात, जो फ़ज़ाइल अहले बैत के हैं, जो काम अहले बैत ने अल्लाह की रज़ा के खातिर किए, वो आज से पहले ना किसी ने किया, ना आज के बाद कोई कर सकता है, ना कोई अभी कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ अहले बैत ही हैं जो वो करते हैं जो वो चाहता है, क्योंकि ये सिर्फ अहले बैत ही हैं जो वो करते हैं जो वो चाहता है। उसकी रज़ा के बगैर कोई भी काम नहीं करते। हम नमाज पढ़ते हैं, क्या 5 वक्त की पूरी पढ़ पाते हैं? कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी छूट जाती है। लेकिन अहले बैत वो वाहिद ज़ात है जिन्होंने नहीं छोड़ी। कलम कर दिया गया, फिर भी नहीं छोड़ी। नौके नेज़ा पे भी कुरान की तिलावत की, नौके नेज़ा पे भी कुरान की तिलावत की। क्या फजीलत, क्या मर्तबा मकाम है अहले बैत का कि जिन्होंने अल्लाह की कैसी फरमाबरदारी। सवाल पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरज। मेरे मौला हुसैन से अल्लाह ने यही तो कहा था, ए नफ्से मुतमिन्ना लौट आ अपने रब की जानिब। ए नफ्से मुतमिन्ना लौट आ अपने रब की जानिब, मैं तुझसे राजी हो। चले है, ये तो बात की बात है। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या बाप की खरीदी हुई कोई भी शय हो, मसलन कोई प्रॉपर्टी वगैरह ही, औलाद का उस पर हक होता है या नहीं? औलाद का उस पर हक होता है या नहीं? आपका जवाब यही होगा कि यकीनन औलाद ही का तो उस पर हक होता है, यकीनन औलाद ही का तो उस पर हक होता है। ना आप अपनी ज़िंदगी में दोस्ती खरीद ले या दुश्मनी, औलाद के हिस्से में आती है, औलाद के हिस्से में आती है या नहीं? यानी बाप अगर लोगों के साथ दोस्ती रखेगा तो लोग उसकी औलाद के साथ भी दोस्ती रखेंगे, लेकिन अगर वो लोगों के साथ दुश्मनी रखेगा तो लोग बाद में उसकी औलाद के साथ भी दुश्मनी रखेंगे। ये असूल है। सलवात पढ़ें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने एक लफ्ज़ कहा, नफ्से मुतमिन। तो देखते हैं कि ये इत्मीनान हुसैन की विरासत है कि नहीं। वाह, ये इत्मीनान मौला हुसैन की विरासत है कि नहीं। शब हिजरत रसूल खुदा ने मौला कायनात मौला अली इब्न अबी तालिब से फरमाया था, ए अली क्या तुम आज की रात मेरे बिस्तर पर सोना चाहोगे? तो मौला अली ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरे सोने से पहले आपकी जान बच जाएगी तो मैं रसूल खुदा सो जाता हूँ। यानी मौला अली ने फरमाया कि अगर मेरे सोने से रसूल खुदा आपकी जान बच जाएगी तो मैं आपके बिस्तर पर सो जाता हूँ। सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। रसूल खुदा ने फरमाया हाँ। तो इस पर मौला अली ने सजदा शुक्र अदा किया और तारीख में ये बात दर्ज है कि उस रात मौला अली बेफिक्र होकर सोए। उस रात मौला अली बेफिक्र होकर सोए। हालांकि उस रात दुश्मन रसूल खुदा को कत्ल करना चाहते थे। वो सारी रात इसी कश्मकश में रहे कि बिस्तर पर मौला अली सो रहे हैं या नबी सो रहे हैं। यानी वो पहचान ही नहीं सके कि बिस्तर पर मौला अली है या रसूल खुदा है, बिस्तर पर रसूल खुदा है या मौला अली है। ऐसे तो नहीं रसूल अल्लाह ने कहा कि हम सब मोहम्मद हैं, कि वो भी परेशान हो गए कि ये बिस्तर पर रसूल खुदा सो रहे हैं या मौला अली सो रहे हैं। सवाल पढ़ें। जब भी मौला दाएं जानिब करवट बदलते तो ऐसा लगता जैसे रसूल खुदा है, और जब बाएं जानिब करवट लेते तो ऐसे लगता मौला अली इब्न अबी तालिब। ऐसे लगता जैसे मौला अली इब्न अबी तालिब है। यानी वो खुद कंफ्यूज थे, उन्हें समझ नहीं आ पा रहा था कि रसूल खुदा लेटे हैं या मौला अली लेटे हैं। अब वो सोच रहे थे कि इधर से देखते हैं तो रसूल लगते हैं, इधर से देखते हैं तो अली लगते हैं। अब वो सोच रहे थे कि ये जो हस्ती सो रही है बिस्तर पर, आखिरकार ये हस्ती है कौन? सवाल पढ़ें। सुभान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। दुश्मन सारी रात ये तमीज ही ना कर पाए कि सोने वाले मौला अली थे या मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा थे। बिस्तर पर सोने वाले मौला अली थे या मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा थे। तो मैं अपनी मौला के अज़ादार माँ बहनों को यहाँ पर एक बात की वजाहत करती चलूँ कि नींद जिस्म की ख्वाहिश है, नींद जिस्म की एक ख्वाहिश है, और ये सोना, ये जागना, ये खाना, ये पीना, ये सब चीज़ें जिस्म की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जिस्म की ज़रूरत है, क्योंकि हर जान अपनी सलामती चाहती है। कोई भी ये नहीं चाहता कि इसे ख़त्म कर दिया जाए या उसे किसी किस्म की तकलीफ पहुँचे।
اسے ختم کر دیا جائے یا اسے کسی قسم کی تکلیف پہنچے۔ اسلام ان جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام بھی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، خودکشی نہ کرو، ان سب ضروریات کو پورا کرو مگر اعتدال میں رہ کر، مگر جب یہ خواہشیں بے لگام ہو جائیں، یعنی انسان اپنی خواہشات کو بڑھا دیتا ہے، تو پھر نفس پر قابو پانا ضروری ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خواہشوں کا ڈھیر، اور جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اپنی خواہشات محدود رکھتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشوں کو قربان کر دیتی ہیں، وہ لوگ ہی اطمینان کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہی اطمینان کے درجے پر فائز ہوتے ہیں جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اور جو نفس کے ساتھ جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا ہے دین میں، کہ یہ اتنا بڑا جہاد ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب مولا علی رسول خدا کے بستر پر سوئے تو یہ آیت نازل ہوئی، وَمِن نَاسٍ مِّن یشری نفسًا ابتغاء مرضات، اور لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جو خدا کی مرضیاں حاصل کرنے کے لیے اپنا نفس بیچ دیتا ہے، اور خدا بندوں پہ میں بہت مہربان ہے، اور خدا بندوں پہ بہت مہربان ہے۔ اور پھر جب مولا علی رات رسول خدا کے بستر پر سو کر اللہ کی مرضیاں خرید کر صبح کی امانتیں واپس لوٹا کر مدینے رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو قلب مصطفیٰ پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی، اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے مرد یا عورت کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، تو میری ماں بہنوں وہ عمل میرے مولا کا عمل تھا، بستر پہ سونے کا، اور دعا آپ نے سجدہ شکر کر کے مانگی تھی کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں علی تیرے محبوب کے کچھ کام آ سکا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں علی تیرے محبوب کے کچھ کام آ سکا۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ وہ عمل خیر تھا کہ جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو اپنی مرضیاں عطا کی، جس کے بدلے میں اللہ پاک نے مولا علی کو اپنی مرضیاں عطا کر دی۔ یہی وہ سودا تھا جب شب ہجرت مولا علی نے اپنے رب سے کیا تھا۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ باپ کی ہر چیز کی مالک اس کی اولاد ہوتی ہے، تو مولا علی نے اپنی خواہشات کو اللہ کے سپرد کر دیا اور اس کی تمام مرضیاں خرید لیں۔ تو مولا علی کے بعد وہ مرضیاں مولا حسین کو وراثت میں ملی، مرضیاں مولا علی کے بعد مولا حسین کو وراثت میں ملی۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو دشمنان اسلام کی خاطر مولا نے مول لی، اور وہ بھی میرے مولا حسین کے حصے میں آ گئی۔ میں آج ولادت کے موقع پر مصائب نہیں پڑھوں گی، لیکن حقیقت کو بھی چھپا نہیں سکتی۔ جب کربلا میں مولا حسین لشکر یزید کے سامنے آئے تو ان سب سے یہی کہا تھا کہ اے حسین ہماری تجھ سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ان سب نے مولا حسین سے کہا تھا کہ اے حسین ہماری تجھ سے کوئی دشمنی ہے، یعنی وہ مولا حسین کو یہ کہنا چاہتے تھے کہ اے حسین ہماری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن تمہارے بابا نے ہمارے بزرگوں کو قتل کیا تھا، ہم آج اس کا بدلہ چکا کر رہیں گے۔ یزید نے بھی یہی تو کہا تھا کہ کاش آج میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے تو میں نے دکھاتا کہ میں نے آل رسول کے ساتھ کیسا انتقام لیا، وہ آج ہوتے تو میرے اس کارنامے پر مجھے داد تحسین دیتے۔ تو میری ماں بہنوں، یہ نقطہ قابل غور فکر ہے کہ یزید نے کہا کہ آج اگر میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے تو خوش ہوتے، زندہ تو وہ تب ہوتے نا اگر مولا علی نے انہیں قتل نہ کیا ہوتا، زندہ تو وہ اس وقت ہوتے جب مولا علی نے انہیں قتل نہ کیا ہوتا۔ تو اس کی یہ بات کہنے کا بھی کیا فائدہ، وہ زندہ تو تب ہوتے جب مولا علی کی ذوالفقار نے انہیں چیرا نہ ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر مولا علی اسلام کی مخالفت پر قتل نہ کرتے تو دشمنی کیسی، پھر بھلا وہ خوش کیوں ہوتے؟ تو اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ اصل دشمنی ان کو اسلام سے تھی، کیونکہ اسلام ہی بت شکنی کا حکم دیتا ہے۔ تو یزید نے ثابت کر دیا کہ ان کے آباء و اجداد بت پرستی کا نظام چاہتے تھے، اور آل نبی کا گھرانہ سارا ہی بت شکن تھا، تو گویا یزید نے واضح کر دیا کہ آج وہ ان بت شکنوں کو یزید کی قید میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔
بولو بولو سخی سرکار کلندر ماست.